आप लोग मुझे बता दें, तो मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करूंगा, ठीक है। हमने ट्रांसफॉर्मेशन की बात की थी, तो ट्रांसफॉर्मेशन की समझ आ गई थी। ट्रांसफॉर्मेशन की समझ आ गई थी। यस सर। यस सर। अच्छा, यस सर। होस्ट से मेरी दरख्वास्त है कि वो वीडियो रिकॉर्ड करे, ठीक है। स्टार्ट कर दी मैंने रिकॉर्डिंग सर। ठीक है, so if you guys want to transform a vector from the rectangular coordinate system to cylindrical coordinate system, we derived 3 equations, and then we had written all these 3 equations in the matrices format. So if you guys want to transform a vector from the rectangular coordinate system into cylindrical coordinate system, you guys will have to calculate the rho component of this vector, the phi component of this vector, and the z component of this vector. And you guys will have to calculate these 3 components with the help of this transformation matrix, cos phi, sin phi, and 0. And then we have minus sin phi, cos phi, and 0. And then we have 0, 0, 1. The x component of the vector will be known to you guys. So the x component will be known, the y component will be known, and the z component will be known. So ये इक्वेशन हमने डिराइव किया था। इंतहाई आसानी के साथ आप लोग इन इक्वेशंस को डिराइव कर सकते हैं इफ यू नो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द यूनिट वेक्टर। तो इनको समझने के लिए आप लोग को चाहिए कि आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिट वेक्टर्स को समझ लें। Once you know the transformation of the unit vectors from the rectangular coordinate system into cylindrical coordinate system, वहाँ पे unit vectors का जो scalar product है, you guys will have to develop the table for the scalar product of the unit vectors, और फिर उन scalar products की मदद से you guys can find out the rho component, phi component, and z component of a vector. And once these 3 components are known, you guys can write down this vector in the cylindrical coordinate system. In the cylindrical coordinate system, this 3-dimensional vector will have a component in the direction of the unit vector a rho, a component in the direction of the unit vector a phi, and a component in the direction of the unit vector a z. ये लिखाई आप लोग को नजर आ रही है? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। तो हमने इन इक्वेशंस को डिराइव किया था, और फिर इन इक्वेशंस को हमने मैट्रिसेस फॉर्मेट में लिखा था। मैट्रिसेस फॉर्मेट में मैं इसलिए लिखता हूँ कि मैट्रिसेस फॉर्मेट में थोड़ा सा लाइक चीज़ें याद करना आसान होती है। देखें, एक इंतहाई आसान ट्रिक, अगर if a vector is in the cylindrical coordinate system, let's say I discuss this vector which is in the cylindrical coordinate system, and you guys want to transform this vector from the cylindrical coordinate system into rectangular coordinate system. So if you guys want to transform it into the rectangular coordinate system, definitely you guys will have to calculate the 3 components in the rectangular coordinate system. Now you guys will have to calculate the x component, the y component, and the z component will already be known. याद रखें, ये z component है, this is a common component. It will be given to you guys in the cylindrical coordinate system as well as in the rectangular coordinate system. तो इस component की calculation की जरूरत नहीं है आप लोगों को। देखें, so you guys will have to calculate these 3 components, और यहाँ पे definitely the rho component of the vector will be known, the phi component of the vector will be known, and the z component of the vector will be known. So if a vector is in the cylindrical coordinate system, the rho component, phi component, and z component will be given to you guys. And you see what you guys need to do. यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में आप लोगों ने
इस माइनस साइन को चेंज करना होगा। यहाँ पे साइन के साथ माइनस साइन है, तो मेक इट पॉजिटिव और इसको माइनस कर दे। ठीक है, तो माइनस साइन यहाँ से हटा के इस साइन के साथ लेके, एंड यू सी बाकी इक्वेशंस एग्जैक्टली द सेम है। कैन यू गाइस वेरीफाई दीज इक्वेशंस प्लीज? अगर किसी के पास वीडियो है तो ये इक्वेशन वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे ख्याल में सिर्फ यही फर्क है, यहाँ पे साइन फाई के साथ माइनस साइन था, इसको यहाँ से उठा के हम यहाँ पे रख देते हैं माइनस साइन को। तो कैन यू वेरीफाई दीज इक्वेशन? यस सर, ठीक है, ठीक यस सर, यही है। यही इक्वेशन है। तो देखें, अगर आपको आई मीन लाइक 3 इक्वेशंस याद हो, तो आई मीन फिर इन इक्वेशंस को याद करना इंतहाई आसान है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में you guys will have to calculate the x, y and z component. The rho component will be given to you guys. The phi component will be given to you guys. The z component will be given to you guys. यहाँ पे माइनस साइन था, इस माइनस साइन को हटा के यहाँ पे लगा दे। So you guys can transform a vector from the cylindrical coordinate system into the rectangular coordinate system. So you guys will know the x component, the y component and the z component of a vector. ठीक है सर? जी। हमारे पास अगर एक वेक्टर हो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो, तो हम उससे फाई की वैल्यू वहां पर निकालेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से। You guys will be given a point. न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने किए थे। You जी guys सर, will वो be given न्यूमेरिकल क्वेश्चन point. की बात कर रहा हूँ। You guys will be given a point. Point जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि point से you guys will have to calculate the value of phi. So सर ये वैल्यू if तो the हम point, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से नहीं निकाल सकते। नहीं ये पॉइंट आपको पॉइंट गिवन होगा कि आप इस पॉइंट पे इस वेक्टर को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करें या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से रेक्टेंगुलर में ट्रांसफॉर्म करें। So the point will be given to you guys and you guys will have to calculate this angle from the given point. जी This सर। point will always be given to you guys, okay? Either in the rectangular coordinate system or in the cylindrical coordinate system or in the spherical coordinate system. So this point will be given to you guys. This point is very important because from this point you guys will have to calculate this angle, or this angle will be given to you guys कि ये angle है, इसी angle पे आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन करें। सर तो ये तो मतलब पॉइंट पहले से गिवन है ना, हम अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है उससे हम निकाल ले, मतलब थीटा इज इक्वल टेंजेंट इनवर्स y बाय x, उससे भी हम फाई निकाल नहीं सकते। y by x कहाँ पे होगा? वहाँ पे तो वेक्टर्स है। सर तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट वहाँ पे सिस्टम है, point तो नहीं है। उस पे हम स्प्लिट कर देंगे ना। खुदा के नेक बंदे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में x वेक्टर का x कंपोनेंट होगा, वेक्टर का y कंपोनेंट होगा, वेक्टर का z कंपोनेंट होगा। ये पॉइंट तो नहीं गिवन होगा जहाँ से आप पाई कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ये तो नहीं कह सकते कि टेंजेंट इनवर्स a y by a x, नो, नॉट लाइक दिस। आप लोगों को पॉइंट गिवन होगा। सही है सर, ठीक है फिर। The point will be given to you guys, okay? और इस पॉइंट से आप लोग ये एंगल कैलकुलेट करेंगे। So the point will be given to you guys. सही है सर, अब क्लियर हो गए। जी जी। बेसिकली आप लोग को पॉइंट गिवन होगा कि आप लोग ऐसा करें कि लाइक इस पॉइंट पे, लाइक इस एंगल पे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में चले जाएं। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, आपको पता है कि 2 यूनिट वेक्टर्स डिपेंड्स अपॉन द एंगल। तो आपको गिवन होगा कि मतलब आप इस एंगल पे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएं, इस एंगल पे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएं। तो एंगल आप लोग जहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? जी सर। जी। एनी अदर क्वेश्चन? Any other question? अच्छा ठीक है। तो फिर जो था हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे थे, टू ट्रांसफॉर्म a vector from the rectangular coordinate system into spherical coordinate system. ये वीडियो देख चुके हैं आप लोग? यस सर। Yes, sir. यस सर। जी। इसमें कोई मुश्किल पॉइंट है? नो सर। ये the transformation of a vector from RCS to
STS. Yeah, the transformation of a vector from spherical coordinate system into rectangular coordinate system. इसमें कोई मुश्किल है? No, sir. इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो, इस वीडियो में एक ऐसा पॉइंट जिसकी आपको समझ ना आए, समझ ना आती हो, तो आई मीन यू गाइस कैन आस्क द क्वेश्चन बाय द वे. सबसे पहले यूनिट वेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म करना, आई मीन लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और यूनिट वेक्टर्स को आप लोग कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं कि यू गाइस कंसीडर two vectors of the cylindrical coordinate system. You guys consider the unit vector arrow and the unit vector AZ. Okay, these are the two unit vectors of the cylindrical coordinate system. And then we consider the unit vector AR. And we know that this unit vector AR makes an angle theta over here. And then we resolve this vector into two components. So this component will be cos theta AZ, and this component will be sin theta arrow. Sin theta arrow. So basically हमने इस AR वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया है दो कंपोनेंट्स में. हमने AR को रिजॉल्व कर दिया दो कंपोनेंट्स में. So the unit vector AR is basically equal to sin theta arrow plus cos theta AZ. ठीक है जी. क्या आप लोग मेरे साथ हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है. तो फिर हमने एरो को ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म किया था रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन वाज cos phi ax plus sin phi ay. If you put the value of arrow over here in this particular equation, तो AR आप लोग के पास आ जाएगा. AR will be equal to sin theta cos phi ax plus sin theta sin phi ay, और प्लस आ जाएगा cos theta az. ठीक है. यस सर. अच्छा, अगर आप लोग AR डॉट AX को कैलकुलेट करने चाहे तो आप लोग के पास क्या आएगा? Sin theta cos Sin phi. theta cos phi. हाँ, AR dot AX will give you sin theta cos phi. AR dot AY will give you Sin theta sin Sin phi. theta sin phi. sin theta sin phi. AR dot AZ will give you Cos theta. cos theta. तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है. स्केलर प्रोडक्ट है ऑफ द यूनिट वेक्टर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स वेरी मैंडेटरी, बिकॉज इन्हीं स्केलर प्रोडक्ट की मदद से फिर आप लोग एक वेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में. ओके, सो देन वी कंसीडर another unit vector AR. This is unit vector A theta. We know that the angle between these two unit vector of the spherical coordinate system is how much? 90 degree? 90 degree. Yeah. और इस एंगल को मैं अल्फा का नाम देता हूँ, राइट? Yes, sir. ठीक है. इन तीनों एंगल्स को अगर आप लोग ऐड करें, if we add all these three angles, theta Alpha plus 90 Plus 90 alpha plus will pi. be equal to 180. हाँ, हाँ. So alpha जो है that will be equal to 90 minus theta. थीटा. अच्छा, फिर इसको रिजॉल्व करें आप लोग. इसको अगर आप लोग रिजॉल्व करें, दिस इज द कंपोनेंट व्हिच इज इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस AZ. So this one will be equal to minus cos of alpha AZ.
and this component is in the direction of unit vector arrow. So this one is Right. sine of alpha Arrow. arrow. ठीक है, so a theta को हमने रिजॉल्व कर दिया है कितने कंपोनेंट्स में? Two. Two components में. The first component is minus cos alpha a. Okay, इसको मैं बाद में लिखता हूँ, a z को सबसे पहले मैं एरो को लिखता हूँ. तो एक कंपोनेंट जो है साइन ऑफ अल्फा एरो है, दूसरा जो है दैट इज माइनस कॉस अल्फा ए जेड. ठीक है जी. So basically we have resolved this unit vector a theta into two components, sin alpha arrow and minus cos alpha az. यहाँ पे जो है आप अल्फा की कीमत डालें. sin of 90 minus theta will be cos theta. If I put the value of alpha Cos theta, and yes. sin of cos theta, तो यहाँ पे a theta आ जाएगा. A theta will be equal to what? Cos of theta multiplied Arrow. by arrow. और cos of 90 minus theta किस चीज के बराबर होगा? Sine Minus theta. sin theta. Sine theta. cos of 90 minus theta जो है वो cos Minus of sin. 90 नहीं माइनस के बराबर होगा कि प्लस के बराबर होगा? Minus, sir. Plus. नहीं, cos of 90 minus theta will be equal to cos of 90 cos of theta plus, जब cos में माइनस साइन होता है तो पर प्लस आता है ना? Sine Yes, of. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये Plus ये sin आ जाएगा माइनस Sine. साइन थीटा के बराबर. दिस विल बी इक्वल टू माइनस साइन थीटा ए जेड, राइट? Yes, sir. ये नजर आ रहा है आप लोग को? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ एरो. अगर हम यहाँ पे एरो की वैल्यू डाल दे तो हमारे पास आ जाएगा क्या? ए थीटा विल बी इक्वल टू कॉस थीटा कॉस फाई ए एक्स प्लस कॉस थीटा. सर आपने ऊपर एक चीज गलत की है. बताएं. सर वो क्या चीज ऊपर जो गलत शुरू में एक चीज आपने गलत की है. हम्म. यार चीज क्या होता है, नाम बताओ सीधे से. ना अच्छा, सॉरी गलती हो गई थी. मुझे लगा कि गलत किया वो. सॉरी सर, सॉरी. अच्छा, सो वी हैव cos थीटा sin फाई ए वाई और फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन थीटा ए जेड. और यहाँ पे ये स्केलर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. प्लीज स्केलर प्रोडक्ट पे तवज्जो दे. ए थीटा डॉट ए एक्स विल गिव यू व्हाट? cos theta cos cos phi. theta cos phi. cos theta cos phi. ए वाई डॉट ए थीटा विल गिव यू Cos व्हाट? theta sin phi. cos theta sin phi. और ए थीटा डॉट ए जेड विल गिव यू व्हाट? Sin theta. माइनस Minus sin theta. minus sin theta. Good. So दो unit vectors को we have transformed these two unit vectors from the rectangular coordinate system into spherical coordinate system. The third unit vector is a phi. The third unit vector is a phi जिसको already हम convert कर चुके हैं. The third unit vector is a phi. This is the unit vector of the spherical coordinate system as well as Cylindrical coordinate. Cylindrical. cylindrical. So ये ऑलरेडी हम cylindrical coordinate system में इसको हम वो कर चुके हैं, रिजॉल्व कर चुके हैं. cylindrical coordinate system में it was equal to minus sin phi a Minus x sin phi plus cos phi. minus sin Plus phi a x Plus cos phi. Cos Good. phi ay. Cos phi. plus cos phi a y. Good. इसको ऑलरेडी हम Plus रिजॉल्व 0 कर az. चुके हैं. प्लस 0 a z आ जाएगा. जी सर. ठीक है. तो आपके पास तीन इक्वेशंस आ गए हैं. देखिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 और दिस इज इक्वेशन नंबर 3. और इन तीनों इक्वेशंस को आप लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं? Matrix form. मैट्रिक्स फॉर्म में. मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं. तो मैं कोशिश करता हूँ कि इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं. फिर एक आसान फार्मूला मैं आपको बताऊंगा. द फर्स्ट यूनिट वेक्टर इज ए आर, द सेकंड यूनिट वेक्टर इज ए थीटा and the third unit vector is a phi.
अच्छा जी, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की बात हो रही है। सो यहाँ पे ए आर ये, तो सबसे पहले आएगा साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई। उसके बाद आएगा साइन थीटा साइन फाई, sin थीटा sin phi। cos काशिफ ने साइन कैसे थीटा हो? साइन थीटा साइन फाई, और फिर आएगा कॉस थीटा। cos थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है। yes sir अच्छा, फिर ए थीटा की बात हो रही है, तो सबसे पहले आएगा कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा कॉस फाई। फिर आएगा कॉस थीटा साइन फाई, sin minus sin theta और फिर माइनस साइन माइनस थीटा आ साइन जाएगा। थीटा। गुड, अच्छी बात है, आप लोग को समझ आ रही है। इसका मतलब ये है कि आपको वीडियो की समझ आ गई थी। अच्छा, उसके बाद Yes. है मतलब ए फाई के लिए हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन फाई, cos phi cos Cos कॉस phi। फाई, और यहाँ पे Zero. 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। yes sir ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। एंड इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में, कैन यू गाइस सी द बोर्ड? yes sir यस सर। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 यूनिट वेक्टर्स ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। वी हैव ए एक्स, वी हैव ए वाई, एंड वी हैव ए जेड। ठीक है, दिस इज हाउ वी ट्रांसफॉर्म the unit vectors of the rectangular coordinate system into the unit vectors of Spherical coordinate spherical system. cos spherical Spherical coordinate coordinate. system। अच्छा एक्सक्यूज मी सर जी, सर अगर हम स्फीरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक वेक्टर दिया हो कि उसको सिलिंड्रिकल में कन्वर्ट करें तो पहले हम उसको रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करेंगे फिर रेक्टेंगुलर को सिलिंड्रिकल में कन्वर्ट करेंगे। एग्जैक्टली आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। यस सर, थैंक यू। अच्छा, मेरी बात सुने। अगर ये, इफ दिस वन इज नोन टू यू गाइस, इफ दीज इक्वेशंस आर नोन, ठीक है, yes sir No, sorry, no, so that second kayda question dikete lo. so if these equations are known, and if you guys have a vector in the spherical coordinate system, let's say I have a vector which is in the spherical coordinate system. So this vector has a component in the direction of the unit vector AR, the second component in the direction of the unit vector A theta, and the third component in the direction of the unit vector A phi. So this is the three-dimensional vector in the spherical coordinate system spherical coordinate system. And मैं आप लोगों से ये पूछता हूँ कि ट्रांसफॉर्म दिस वेक्टर फ्रॉम द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इनटू rectangular coordinate system रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे आसान तरीका ये है कि प्लीज मेरे साथ रहें। इस यूनिट वेक्टर ए एक्स को रिप्लेस करें, सॉरी let's say this unit vector is in the rectangular coordinate system. I'm sorry. Let's say we have a vector which is in the rectangular coordinate system. So this will be the x component, here will be the y component, and here will be the z component of this vector, right? Let's say कि हमारे पास एक वेक्टर है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एंड मैं आप लोगों से ये पूछता हूँ कि इस वेक्टर को आप लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से उठा के कहाँ ले गए? spherical coordinate system स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर ए आर था, इसको मैं रिप्लेस sir. करता हूँ बाय द स्केलर कंपोनेंट ए आर। यहाँ पे यूनिट वेक्टर ए थीटा है, इसको मैं रिप्लेस करता हूँ बाय द स्केलर कंपोनेंट ए थीटा। यहाँ पे यूनिट वेक्टर ए फाई है, और इसको मैं रिप्लेस करता हूँ बाय व्हाट? द स्केलर कंपोनेंट ए फाई। सिमिलरली यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे द यूनिट वेक्टर ए एक्स है, रिप्लेस इट बाय द स्केलर कंपोनेंट ए एक्स। यहाँ पे यूनिट वेक्टर ए वाई है, रिप्लेस इट बाय द स्केलर कंपोनेंट ए वाई।
यहाँ पे यूनिट वेक्टर एज इट है एंड रिप्लेस इट बाय द स्केलर कंपोनेंट एज इट। तो एग्जैक्टली यही इक्वेशंस हम डिराइव कर चुके हैं और इन्हीं इक्वेशन की मदद से यू गाइस कैन कैलकुलेट this component of the given vector, this component of the given vector, and this component of the given vector. You guys will have to calculate these three components with the help of these three matrices. And once these three components are calculated, you guys can write down this vector in the spherical coordinate system. So we will have a theta plus a phi. तो ये एक आसान तरीका था। सबसे पहले आप लोग यूनिट वेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म करें, फिर यूनिट वेक्टर्स को रिप्लेस करें बाय द स्केलर कंपोनेंट, यूनिट वेक्टर्स को रिप्लेस करें बाय द स्केलर कंपोनेंट। इंतहाई आसान तरीका। ठीक है जी? ठीक है सर। यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे एक नजर डालते हैं। लेट्स से कि हमारे पास एक वेक्टर है विच इज इन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक वेक्टर है विच इज इन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमने इस वेक्टर को ट्रांसफॉर्म करना है किस सिस्टम में? आरसीएस, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर में। तो रेक्टेंगुलर में हमने क्या कैलकुलेट करना होगा? ax ay az। हमने कैलकुलेट करना होगा ax, हमने कैलकुलेट करना होगा ay, और हमने कैलकुलेट करना होगा az। ठीक है जी? ठीक है। यस। तो हम अगर ax को कैलकुलेट करना चाहें तो ax के लिए जो स्केलर प्रोडक्ट है दैट इज व्हाट? a डॉट ax। ठीक है जी? a dot ax। यस। a डॉट ax। तो मैं क्या करता हूं कि मैं ar का ax के साथ जो है तो मेरे पास यही कंपोनेंट आ जाएगा। यस सर। मेरे पास ये आप लोग बाद में करेंगे, आपको पता है कि कैसे करना है। आप लोग के पास ये कंपोनेंट आ जाएगा। फिर जो है ए थीटा डॉट एक्स आ जाएगा। सर ये cos थीटा cos फाई आ जाएगा। एक मिनट। ए थीटा डॉट एक्स आ जाएगा। तो एग्जैक्टली इसको यहाँ पे शिफ्ट करें, ये आ जाएगा Yes, cos थीटा cos फाई। यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा cos फाई। बिल्कुल इसको आप लोगों मैट्रिक्स ने का ट्रांसपोज ले लें। सर ट्रांसपोज भी आसान तरीका है सर। ट्रांसपोज ले लें। इसको रिमूव करो यार। कर दिए, म्यूट कर दिए। ओके, तो उसके बाद हमने करना होगा ए फाई डॉट ax dot ay। ए फाई डॉट एक्स, तो माइनस साइन फाई यहाँ पे आ जाएगा। यस सर। यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन फाई। डेफिनेटली यहाँ पे आ जाएगा cos फाई। cos फाई 0। और यहाँ पे क्या आएगा? साइन थीटा। sin फाई। यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, और यहाँ पे भी मतलब चेंजेस आने sin थीटा। आप लोग यहाँ पे माइनस साइन थीटा आएगा। यस सर, माइनस sin थीटा और यहाँ पे cos सर थीटा यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे cos थीटा है, यहाँ पे माइनस है। यस सर, उल्टा आपने लिया, चेंज किया सर। पहले cos है फिर माइनस साइन। वो आप लोग कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि ये आप लोग कर सकते हैं। ये cos थीटा आ जाएगा और ये माइनस साइन थीटा आ जाएगा। तो ये आप लोग कर सकते हैं इंतहाई आसानी के साथ। या अगर हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्म ले ले तो बात बनती है। यस सर, ट्रांसपोज। जी सर। यस सर। मैंने कभी इस तरह नहीं सोचा। अभी किसी ने बात की है कि अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज ले ले तो बात बन जाती है। क्या बनती है? यस सर, जी सर। बिल्कुल एग्जैक्टली सहमत है सर। बनती है सर। तो फिर तो ठीक है, आसान तरीके है, ट्रांसपोज ले थोड़ा लो। फर्क ये आता है सर, ये माइनस का नहीं फर्क आता है। आता है। माइनस सर मैंने यहाँ पे भी ऐसा फर्क ठीक है आएगा ना? सर। आएगा सर, वो माइनस साइन फाई और cos फाई का फर्क आता है। यहाँ पे मतलब लाइक यहाँ पे माइनस साइन थीटा ने
आना था वो यहाँ पे आ गया है। हाँ सर Yes, sir. एग्जैक्ट ही आता है, फर्क नहीं आता। एग्जैक्ट नहीं आता इसलिए, ठीक है। फर्क आता है सर, ये तो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो एनी हाउ दिस इज हाउ वी ट्रांसफॉर्म अ वेक्टर फ्रॉम, हमारे पास टाइम है कि टाइम वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। 1 मिनट रहता है सर, 1 मिनट रहता टाइम इज ऑलमोस्ट अभी बंद हो ठीक है, मैं लॉग आउट कर रहा हूँ एंड लेट अस कम बैक। हमारा